Hello students, this is Professor Kavita Brahmankar, CO Department, NIT Polytechnic Nagpur, welcomes you back again to the online lecture series of subject Computer Networking and Data Communication. Today's topic is topic number 4.6 of Unit 4 and topic name is Frame Format of Point-to-Point Protocol. Learning Outcomes. After watching this video, you will be able to draw the frame format of point-to-point protocol, describe each field in frame format of point-to-point protocol, and describe what is byte stuffing technique of point-to-point protocol. Course outcomes that is going to achieve by this unit is CO4, analyze error detection or correction and flow control of data in the network. And program outcomes, those are going to map are PO1, basic and discipline specific knowledge, PO4, engineering tools, experimentation and testing, PO6, project management, and PO7, lifelong learning. Prerequisite to this topic is you should know services provided by point-to-point protocol and you should know the working of sliding window protocol. Now let us see the frame format of point-to-point protocol. So this diagram shows the frame format of point-to-point protocol. As this is a data link layer protocol, इसलिए जो भी डेटा हम सेंड करेंगे that is in the format of frame. So first and last field that is called flag field and this is set to this byte. तो जो भी पर्टिकुलर फील्ड का जो भी ये डेटा है दैट इज स्टोर्ड इन टर्म ऑफ बाइट, क्योंकि P2 पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल ये जो है हमारा बाइट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, इसलिए हम यहाँ पे बाइट्स के फॉर्म में सभी फील्ड्स का इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे. सो फ्लैग फर्स्ट एंड लास्ट फील्ड ऑलवेज दैट विल बी फ्लैग एंड द बाइट वन it will be of 1 byte and it will get stored. First bit and last bit will be 0 and it is preceded by consecutive ones. So 6 number of consecutive ones and first and last bit will be 0. So flag, it is of 1 byte that marks the beginning and end of the frame and the bit pattern of the flag is 0, 6 number of ones and 0. The next field is address field and it is again it is of 1 byte. So it is 1 byte which is set to 8 number of ones in case of broadcast. अगर हम फ्रेम को ब्रॉडकास्ट करना चाहते हैं नेटवर्क पे तो ये डिफॉल्ट एड्रेस हम सेट करेंगे दैट इज 8 नंबर ऑफ वंस एंड इट इज ऑफ 1 बाइट. लेकिन अगर हम पर्टिकुलर किसी होस्ट को ही हमारा जो फ्रेम है वो सेंड करना चाहते हैं, इन दैट केस यहाँ पे रिसीवर या होस्ट का एड्रेस रहेगा. लेकिन अगर ब्रॉडकास्ट करना चाहते हैं तो ये डिफॉल्ट एड्रेस यहाँ पे सेट होगा. नेक्स्ट फील्ड इज कंट्रोल फील्ड. So control field is of again 1 byte and it is set to constant value 1 1 and 6 number of consecutive zeros. Then next field is protocol field. It is 1 or 2 bytes that define the type of data contained in the payload field. So ये जो protocol field है it is of 1 or 2 bytes और जो भी टाइप का डेटा हम सेंड करने वाले हैं, जिस भी टाइप का डेटा हम सेंड करने वाले हैं तो उसके ऊपर डिपेंड है हमारा प्रोटोकॉल फील्ड. सो वो 1 बाइट रहने वाला है या 2 बाइट का रहने वाला है, दैट इज डिपेंड ऑन पेलोड फील्ड. ओके, देन पेलोड फील्ड, दिस कैरीज द डेटा फ्रॉम द नेटवर्क लेयर. द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द पेलोड फील्ड इज 1500 बाइट्स. हाउएवर दिस मे बी निगोशिएटेड बिटवीन द एंड पॉइंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन. अब पेलोड में हमारा एक्चुअल डेटा जो हम कैरी करने वाले हैं वो रहने वाला है पेलोड में और इसका मैक्सिमम लेंथ जो है हम 1500 बाइट्स तक हो सकता है. इसलिए हमने यहाँ पे वेरिएबल लेंथ लिखा है क्योंकि कोई जो होस्ट है वो 1500 बाइट से कम डेटा सेंड कर सकता है और कोई ज्यादा डेटा सेंड कर सकता है अप टू 1500 बाइट्स. इसलिए हमने इसको पेलोड का जो लेंथ है वो वेरिएबल लेंथ दिया है. देन FCS, it is a 2 byte or 4 bytes frame. Check sequence for error detection. The standard code is used is CRC, cyclic redundancy code. So this FCS, this is for error detection technique.
ओके, सो एरर डिटेक्ट करने के लिए हम ये जो कोड है वो यूज करेंगे इसका, एंड इट इज ऑफ 2 और 4 बाइट्स. सो नॉर्मली हम CRC दैट इज साइक्लिक रिडंडेंसी कोड ही यूज करते हैं, एंड इट इज ऑफ 2 और 4 बाइट्स. देन व्हाट इज बाइट स्टफिंग इन पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल. सो हमारा जो फ्लैग है, सो दैट विल बी, फ्लैग जो है हमारा फर्स्ट एंड लास्ट जो फील्ड होता है वो फ्लैग फील्ड होता है, और इसका सीक्वेंस जो है, ये बाइट का सीक्वेंस जो है वो फिक्स्ड है. लेकिन ऐसे हो सकता है कभी कभी कि हमारा डेटा ही ये हो, हमारा डेटा ही ये बाइट का हो, तो हमारा जो रिसीवर है वो कंफ्यूज हो सकता है कि ये फ्लैग फील्ड है या फिर हमारा एक्चुअल डेटा है. ओके, तो वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम कुछ एक्स्ट्रा बाइट ऐड करते हैं. ओके, उसको हम बोलते हैं एस्केप बाइट. तो वो बाइट किस तरह से ऐड करेंगे, ये जो हमारा फ्लैग का सीक्वेंस है वो लिखेंगे, और लास्ट में हम 7th बीट ऐड करेंगे, दैट इज 1. ओके, तो हमारे रिसीवर को समझ में आ जाएगा, ये सीक्वेंस देखेगा और उसके बाद अगर उसको 1 दिखता है तो वो उसको कंसिडर करेगा कि ये हमारा एक्चुअल डेटा है, ये फ्लैग नहीं है, एंड एट द रिसीवर साइड उस 1 को, उस एस्केप बाइट को वो रिमूव कर देगा और इसको फिर एज अ डेटा वो कंसिडर करेगा. ओके, सो बाइट स्टफिंग इज यूज्ड is a point-to-point protocol payload field whenever the flag sequence appears in the message. Okay, so ये flag का sequence अगर message में appear होता है, so that the receiver does not consider it as the end of the frame. तो अगर ये जो फ्लैग सीक्वेंस अगर हमारा मैसेज में अपीयर होता है या पेलोड फील्ड में अपीयर होता है, तो ऐसे हो सकता है कि रिसीवर उसको एंड ऑफ द फ्रेम कंसिडर करेगा. ओके, तो उसने कंसिडर नहीं करना चाहिए क्योंकि ये हमारा डेटा का पार्ट है, हमारे पेलोड का पार्ट है. तो एस्केप बाइट हम स्टफ करेंगे, इज स्टफ बिफोर एवरी बाइट दैट कंटेन्स द सेम बाइट एज द फ्लैग बाइट और द एस्केप बाइट. तो अगर इस तरह से हमारे डेटा में फ्लैग बाइट अगर दिखता है तो उसमें हम एक एस्केप बाइट जो है वो स्टफ करेंगे. मीन्स सिंपली हम उस डेटा के लास्ट में 1 स्टफ कर देंगे, तो ये हमारा एस्केप बाइट बन जाएगा. तो जहां जहां पे ये फ्लैग सीक्वेंस एज अ डेटा दिखता है वहां पे हम इस तरह से 1 स्टफ कर देंगे एट द एंडिंग. तो फिर हमारे रिसीवर को समझ में आ जाएगा कि इट इज अ पार्ट ऑफ पेलोड. The receiver on receiving the message removes the escape byte before passing it on to the network layer. तो हमारा जो रिसीवर है हमारे डेटा को नेटवर्क लेयर पे पास करने के पहले ये जो एक्स्ट्रा बाइट है या फिर ये जो एस्केप बाइट है उसको वो रिमूव कर देगा एंड ओरिजिनल फॉर्म में उसको नेटवर्क लेयर को सेंड करेगा. सो दिस इज व्हाट बाइट स्टफिंग इन पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल. So dear students, let us summarize today's lecture. Today we have seen how is the frame format of PPP. So we can see the diagram for frame format of PPP. So total 7 fields are there in the PPP frame format. First and last field will be flag, then address, control, protocol, payload and FCS. Then we have seen what are the fields in the frame format. So total 7 fields are there in the frame format. And what is byte stuffing technique of PPP. So अगर हमारा फ्लैग का सीक्वेंस हमारे पेलोड पार्ट में आता है तो कंफ्यूजन, रिसीवर का कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम एस्केप सीक्वेंस ऐड करते हैं. तो दैट इज कॉल्ड byte stuffing technique of point to point protocol. I hope you might have understood today's video and keep learning, enjoy learning. Thank you for watching the video.